Okay, good afternoon, everyone. I hope that all of you are doing well. मैं सोचती हूँ कि आप सब लोग अच्छे पाए जाते हैं Okay, and I hope that you've learned a lot over the last few और weeks. मैं विश्वास करती हूँ कि पिछले सप्ताहों में आपने बहुत कुछ सीखा है Okay, so that's the reason we've come here. और यही कारण है कि हम यहाँ पर पाए जाते हैं। So today we will start this course called as the local church. और आज हम जो विषय सीखेंगे स्थानीय कलीसिया के बारे में। Okay, so let's pray and we will begin. और आइए हम प्रार्थना के साथ प्रारंभ करेंगे। Heavenly Father, we thank you for this time in your word. प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। And Father, we pray that you will give us understanding about the local church. प्रभु, आप हमें समझ और ज्ञान से परिपूर्ण करें ताकि हम स्थानीय कलीसिया के बारे में समझ सके। And Lord, even as we understand that, every single one of us, Lord, help us to do according to your will. प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार हमें समझने के लिए सहायता कीजिए। Father God, we thank you for this time. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, We commit it into your hands. आपके हाथ में समर्पित करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Okay, so this is a very interesting subject. और ये बहुत ही मजेदार विषय है। We are going to learn about the church. और हम कलीसिया के बारे में सीखने जा रहे हैं We all are a part of the church. और हम सभी कलीसिया के एक भाग हैं। So let me ask a question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, Who started the church? किसने कलीसिया का आरंभ किया? Who started the church? किसने कलीसिया प्रारंभ की? Okay, I can hear some whispers. Okay, somebody is saying Peter started the church. कुछ लोग कहते हैं कि पतरस ने प्रारंभ किया। Okay, now let me put it in a different way and ask you, और मैं दूसरे उस तरीके से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, who planned that there should be a church? और किसने योजना बनाया ताकि कलीसिया आ सके? Whose plan, whose idea is किसका it? प्लान था? Jesus. Okay. Any other answers? और कुछ? किसने योजना बनाया था? Okay, Father God. पिता परमेश्वर। All right. So we will see whose idea it was. और हम देखेंगे ये तरीका किसका था। It is definitely not man's idea. और ये बात सही है, किसी मनुष्य का राय नहीं था इसमें। Yeah, so no human being thought that we should have a church and then they started the church. और किसी मानव की सोच नहीं थी कि हम एक कलीसिया को प्रारंभ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। Okay, so it's not like a social gathering that somebody initiated. और जैसे कोई सामाजिक इकट्ठा होना नहीं है जो चीज बताया गया है। Okay, so the church is God's design. और ये कलीसिया ये परमेश्वर की रचना है। So when we say design, you and I understand that before we make something, we have a plan. और इस बात को समझे कि हम किसी चीज को बनाने जाते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ हम योजना पहले से तैयार करते हैं। So if we have to construct this building, we'll start with a design or what is called as a blueprint. मान लीजिए एक अगर आपको एक भवन का निर्माण करना है तो उस निर्माण करने के पहले योजना बनाते हैं, उसके रूपरेखा को तैयार करते हैं। Okay, so God has a blueprint for the church. और परमेश्वर के हाथ में कलीसिया के लिए एक रूपरेखा है। Now, if you and I have been called to plant a church, we have to understand God's blueprint. हमें इस बात को समझना है कि अगर परमेश्वर ने हमें को बुलाया है उसकी कलीसिया का निर्माण करने के लिए, तो उसके पास एक रूपरेखा है उसको तैयार करने के लिए। Okay, so when we understand the blueprint, we will be able to plant the kind of church that God wants us to plant. अगर कलीसिया के रूपरेखा को हम समझ लेंगे तो हमें बड़ा आसानी होगा उसको तैयार करने के लिए या निर्माण करने के लिए। So this book that you're holding in your hands carries information about the blueprint of the church. और ये आपके पास जो पुस्तक है उसमें हम जो इसको लेके चल रहे हैं और इसको हम पकड़े हुए हैं, इसमें परमेश्वर की सारी रूपरेखा कलीसिया के बारे में दिया गया है। Okay, so how many of us want to understand this? तो कितने लोग इस बात को समझना चाहेंगे या सीखना चाहेंगे?
Okay, all of Okay. us. That's great. सभी लोग ओके So now let's begin with chapter 1. आइए हम पहला अध्याय से प्रारंभ करेंगे So this chapter states the spiritual and the natural dimensions of the church. और यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया का एक आत्मिक और स्वाभाविक पहलू के So बारे में we all understand the natural aspects of the church. और हम एक कलीसिया के स्वाभाविक स्तर को हम समझेंगे जो प्राकृतिक तौर से जो है Okay, because we all belong to the church. क्योंकि हम सब कलीसिया के एक भाग हैं And we understand how the church is. और हमें इस बात को समझना है कलीसिया कैसी है Okay, so we have a little bit of understanding about the natural dimensions. और हमें थोड़ा बहुत प्राकृतिक या स्वाभाविक कलीसिया के बारे में कुछ जानते हैं But we also need understanding about the spiritual dimension. और साथ साथ हमें ये समझना है कि आत्मिक पहलू कलीसिया का क्या है So let's start by reading a passage from Matthew chapter 16 verses 15 to 19. और हम इसको प्रारंभ करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 15 से 19 पद तक So I want to request one person to read it in Hindi and the other person to read it in और English. एक जन हिंदी में पढ़ने में और एक जन अंग्रेजी पढ़ने में मदद करे He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Yeah, we'll read into the mic because it's beneficial for. उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शैमोन पतरस ने उत्तर दिया, आप जीत परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, है शैमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। Okay, so based on this passage, please tell me what is this rock on which Jesus wants to build the church? और इस वचन के आधार पर ये बताइए किस पर परमेश्वर कलीसिया का निर्माण करेगा, किस पर स्थापित करेगा? What is the rock? कौन सा वो चट्टान है जिस पर कलीसिया का निर्माण किया जाएगा? On us? Okay, that's one answer. एक उत्तर यह है कि Jesus is the rock. So what I'm searching for the correct answer. मैं सही उत्तर को Jesus is the rock. Jesus is the rock. Okay. Dr. Mary, she says Jesus is the rock. Okay, fine. Based on this passage, what is the rock? इस वचन के आधार पर चट्टान कौन सा है? Yeah? Peter. Yes, very good. Okay, so see, we have to understand it in its context. और हम इस जो वचन के आधार पर हम समझे वो क्या है। Okay, next week you have a course on interpreting scripture. और अगले बार आपको अब देखेंगे कैसे वचन का अनुवाद किया जाता है, कैसे उसको अनुवाद में लाते हैं। Okay, so don't miss that course. Very, very important course. और वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा आपके लिए, वचन का अनुवाद So करना। when we read this passage, it looks like Jesus is saying, "You are Peter, on this rock I will build my church." और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि तो तुम पतरस हो जो तुम्हारे ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। Okay, so just based on that statement, we cannot say that the rock is Peter. और इस वचन के आधार पर हम ये उसके पहलू के अनुसार हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पतरस वो चट्टान है करके। Okay, so the rock is the revelation of Christ. और जो यहाँ जो चट्टान है
वो यीशु मसीह का प्रकाशन है। यीशु Because- स्वयं प्रकाशन करता है। When you see the earlier verses, what is Jesus asking Peter? Who do you say that I am? और पहले वचन में हम देखते हैं कि उससे पूछा कि मैं उसने पूछा कि मैं कौन हूं करके बात कर रहा है वहां पर, मैं Okay. मसीह हूं क्या पूछ रहा है। Then Peter said, yes, you are the Christ. तब पतरस कहता कि हाँ आप मसीह हैं करके। And Jesus is saying, on this revelation, I will build my church. और इस प्रकाशन के कारण मैं अपनी कलीसिया का स्थापना करूंगा। Okay, so we need this understanding that Jesus is the Christ. और इस बात को समझने का यीशु ही मसीह है करके। And the church is built on this revelation. और इस प्रकाशन के आधार पर कलीसिया की स्थापना होगी। Okay, so if there is no revelation of Jesus being the Christ, we can't call that a church. और बिना प्रकाशन के हम उस मसीह की कलीसिया करके हम कह नहीं सकते। Okay, so it is the revelation that Jesus is the Christ. और ये इस बात का प्रकाशन है कि यीशु ही मसीहा है। Based on this passage, I want to ask you, who will build the church? और मैं इस वचन के आधार पर पूछना चाहती हूँ, किसने कलीसिया का निर्माण किया या बनाया? Who will build the church? कौन बना सकता है? Yes, कौन बना सकता है? इस वचन के आधार Jesus, right? पर यीशु ही बना So सकता है। always remember that it's not just, of course, in a natural sense, you and I are working for the church, but Jesus is building the church. हाँ, ये बात सत्य है कि मैं और आप कलीसिया में कार्य करते हैं, कलीसिया के साथ है, लेकिन कलीसिया का निर्माण करने वाला, बनाने वाला स्वयं मसीह है। Okay, so if Jesus does not build the church, we cannot, it cannot stand. अगर मसीह कलीसिया की स्थापना ना करे, हम कुछ भी नहीं है। And if Jesus is building the church, somebody comes to destroy it, it won't be destroyed. और अगर मसीह ने कलीसिया का निर्माण किया है और उसे कोई नाश करने के लिए प्रयास करेगा, वो हो नहीं सकता। Yeah, because Jesus has with determination said, I will build my church. इसलिए बड़े बड़े हियाव के साथ यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा या निर्माण करूंगा। Okay, so the church is something very special. और ये कलीसिया में एक विशेषता पाई जाती है। And Jesus loves the church. और यीशु उस कलीसिया से प्रेम करता है। He's saying, not the angels, not the heavenly host, but I will build my church. और वो कहता है कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है या स्वर्गदूत नहीं, बल्कि मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा, बनाऊंगा। Okay, so Jesus has taken the responsibility to build the church. और यीशु मसीह ने जिम्मेदारी लिया कलीसिया का निर्माण करने के लिए। What kind of church is he building? और किस प्रकार की कलीसिया है जो उस बात को बताता है। He is not building a weak church. और वो किसको बनाता है? कमजोर कलीसिया का निर्माण करता है। No, he is not building a weak हाँ, church. एक यीशु मसीह कमजोर कलीसिया का निर्माण नहीं करता है। Okay, the church is supposed to be strong and powerful. और वो एक सामर्थी और जो सशक्त है उस कलीसिया का निर्माण करने के लिए। Because the passage says the gates of hell will not prevail. और वचन कहता कि अधोलोक की शक्तियां मतलब उस पर वो प्रवेश नहीं कर सकती। Gates are the place in this context where there were people of influence in those gates. फाटक का मतलब है कि वहां पर लोग का प्रभाव के बारे में बताया गया है। So when it comes to the kingdom of darkness, there are demonic strongholds which we can look at as gates. अब देखते हैं कि अंधकार के राज्य में देखते हैं कि वहां पर दुष्ट की शक्ति, शैतान की शक्तियां पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों के बारे में, उन फाटकों के बारे में बताया जाता है जहां से प्रवेश है। Okay, so Jesus is saying that the church will damage the gates of hell. और Damage the gates of hell. वो यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि उस अंधकार की शक्ति को नष्ट करने के लिए उसका निर्माण करता है। And he's saying that the gates of hell will not prevail against the church. इसलिए अधोलोक की फाटक उस पर किसी प्रकार से प्रबल ना होगी करके बताया गया है। So tell me, who's stronger, the gates of hell or the church? या यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया का फाटक या अंधकार की शक्ति का फाटक प्रबल होता है, कौन सी? The church is stronger. क्योंकि कलीसिया मजबूत है। Now my question is, do we have this understanding that the church, which is us, we are stronger?
और क्या इस बात को आपके पास क्या समझ है कि हम जो कलीसिया है हम कितना मजबूत है या मजबूत पाए जाते हैं? Sometimes we look at the people around and we feel small. और कई बार हम चारों ओर देखते हैं लोग बड़े छोटे स्तर के पाए जाते हैं। We feel small about ourselves. और कई बार हम क्या करते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं उसमें। Maybe, we are a small church and we're looking at all the others around us and we feel small. और हम जो छोटे कलीसिया होने के नाते हम बड़ी कलीसिया को देखते हैं, हमें एक निराशा या कहते हैं हम सोच में पड़ जाते हैं उन बातों में। We may be the only believer in our college, in our workplace. हो सकता है हम अपने कार्य क्षेत्र में, कॉलेज में एक अकेले विश्वासी हो। But notice the scripture says that the church is powerful. लेकिन यहाँ पर इस बात को ध्यान दे कि कलीसिया वहां पर एक प्रभावशाली सामर्थी है। So you and I, as people of the kingdom, we are walking with that power. और मैं और आप परमेश्वर के राज्य में पाए जाते हैं तो हम उस सामर्थ को लेकर चलने वाले लोग हैं। So it doesn't matter if you're the only person, only believer, only Christian. You are part of the church and the church is strong. इस बात को ऐसा कमजोर रीति से ना समझे, लेकिन जहां कहीं भी है, लेकिन इस बात को समझे कि मैं और आप उस कलीसिया के प्रभावशाली सामर्थ्य कलीसिया के भाग हैं। And we also saw in the passage that Jesus gave the keys of the kingdom. और यहाँ पर हम दो वचन को देखते हैं कि परमेश्वर मसीह ने उस परमेश्वर के राज की कुंजी को जो हमारे हाथ में दिया है। The keys mean authority. और कुंजी का मतलब है, चाबी का मतलब है अधिकार। So you and I as believers are carrying authority to overcome the works of darkness in the world. और मैं और आप जब संसार में जीवन व्यतीत करते हैं, अंधकार के ऊपर वो कुंजियां को हमें दी गई है। Remember, in believers authority we learned that we can overcome demons, we can overcome the powers of विश्वासी darkness. होने के नाते हमारे पास वो अधिकार है कि अंधकार की शक्ति पर जय पाने के लिए, उस मृत्यु पर जय पाने के लिए वो अधिकार मसीह ने हमें दिया है। So the first point that we must understand is that the church is powerful. और इस बात को समझना है कि कलीसिया सामर्थी है। The church is special. और कलीसिया एक विशेष है। And Jesus has spoken in his word and said, I will build my church. इसलिए परमेश्वर ने अपने यहाँ पर वचन में बताया गया और मसीह कहता है कि मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। So we as believers, we see so many things happening in the world. और जब हम विश्वासी होने के नाते संसार में हम बहुत सी बातों को देखते हैं चारों ओर, We should not feel weak. हम कमजोर नहीं समझना है। We can exercise our spiritual authority. हम अपने आत्मिक अधिकार को लेकर, And if God has called you in a special way to, work in other ways, then do that. और परमेश्वर हमें विशेष बुलाहट के द्वारा बुलाकर उन कार्यों को करने के तैयार हो जाए। So the church comes from a Greek word called ecclesia. और जो कलीसिया, जो एक यूनानी भाषा जो शब्द है इक्लीसिया से आया गया है। So what is the meaning of this word ecclesia? और इक्लीसिया क्या मतलब क्या है? It means a group of people who have been called out. इसका मतलब है एक समूह को अलग बुलाया गया, अलग किया गया। So in the Bible times, the Greeks, the citizens would come out to discuss about the land. और जैसे जो हिब्रू लोग क्या करते थे कि अपने जमीन के बारे में एक दूसरे से जानकारी को प्रदान करते थे और सलाह लेते थे। So they would come out as a group to discuss. और एक समूह निकलकर बाहर निकलकर अलग होकर उस बातों की चर्चा किया करते थे। And today you and I are called as the church. और इसलिए मैं और आप आज कलीसिया कहलाई जाती है। We are the called out ones. मैं और आप बुलाए गए और निकाले अलग किए गए लोग हैं। We have been called to respond to a special heavenly calling. और परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय बुलाहट से बुलाया है कि Okay, हम उस काम को करें। We are different from the world. हम संसार से अलग हैं। We are a called out people to represent Jesus to the world. और हमें परमेश्वर ने बुलाया है कि हम मसीह को हमारे जीवन के द्वारा दिखा सके अपने आप को। And God has called us out for a heavenly purpose. और परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय उद्देश्य को रखने के लिए अलग किया है। So we must remember wherever we are that we are set apart. और इस बात को याद रखना है कि जहाँ कहीं भी है हमें परमेश्वर ने अलग किया है। We are not
of the world. हम इस संसार के नहीं हैं। Okay, so we are in the world, but we are not of the हम world. इस संसार में तो रहते हैं लेकिन हम संसार के नहीं हैं। So this is the meaning of ecclesia. You are separate for और God. इक्लेसियास का मतलब यही है कि मैं और आप अलग किए हुए लोग हैं। Jesus has called us out of the world. और यीशु मसीह ने हमें संसार से बुलाकर अलग किया है। So have you understood the meaning of the word ecclesia? और आपने इक्लेसिया के शब्द को समझ लिया, अर्थ को जान गए? Okay, what is it? क्या है? I can only hear all mumblings. केवल थोड़े ही लोग की बात सुन। So what is the meaning of ecclesia? बताइए इक्लेसियस का मतलब क्या है? इक्लेसिया Ma'am, ecclesia means a group of people called out. Yes. A group of people who are called out. एक समूह है जिन्हें बाहर बुलाकर अलग किया गया। Okay. So that is who we are. और वो हम लोग हैं। So maybe you can just look at your friend and say, I'm different. और अब अपने मित्र को देख के कहे कि मैं आपसे अलग हूँ। No, I am different from the world. मैं संसार से अलग हूँ। सॉरी, मैं संसार से अलग हूँ। बोले देख के आपस में कहे, मैं संसार से अलग हूँ। Okay. So this you must remember when you're in the sansar. Okay. Don't forget और it. इस बात को आप स्मरण करना, याद रखना है। All right. So now let's look at the spiritual dimensions of the church. अब कलीसिया के आत्मिक विस्तार या पैमाना के बारे में हम देखेंगे। What is the church? चर्च, कलीसिया क्या है? The church is the body of Christ. और कलीसिया मसीह का अंग है या शरीर है। I will read Colossians 1:18 and 24, and one of us can read it in Hindi. इंग्लिश और हिंदी में पढ़ेंगे। कुलुस्सियों ये पत्री, उसका पहला अध्याय 18 और 24 पद को। And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. और वही देह है, अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोटा है। ये सब बातों में वही प्रधान ठहरे। I now rejoice in my sufferings for you and fill up in my flesh what is lacking in the afflictions of Christ for the sake of his body, which is the church. अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाया हूँ और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी ये देता हूँ। So this group or the gathering of believers is the body of Jesus Christ. जो इकट्ठा एक किए गए जो समूह है वो मसीह की देह कहलाती है। That means spiritually you and I are the body of Christ. आत्मिक तौर से हम देखते हैं कि हम मसीह यीशु के उस शरीर के भाग हैं We have been joined together with Christ. और हम सब उसके शरीर के साथ जोड़ दिए गए हैं। We have been united with him हम उसके साथ एक हो गए हैं and we are a part of him. और हम उसके भाग हैं। Okay, so this is something that we must understand. और ये बातें हमें समझना बहुत जरूरी है। Okay, so we have now become the body of Christ. और हम मसीह की देह में पाए जाते हैं। So when somebody receives us, whom are they receiving? अगर कोई हमें ग्रहण करता है या स्वीकार करता है तो हम कौन है? Who are they receiving? किसको लोग ग्रहण कर रहे हैं? Christ. So मसीह को। if somebody rejects us, whom are they rejecting? अगर जो कोई हमें तिरस्कार करता है तो किसको तिरस्कार करते हैं लोग? Right? So when we are proclaiming the gospel and we are rejected, people are actually rejecting the body. अगर of जब हम Christ. मसीह के सुसमाचार की जब घोषणा करते हैं, अगर वो तिरस्कार कर रहे हैं हमारा, इसका मतलब है वो मसीह की देह का तिरस्कार कर रहे हैं। So it's very interesting when you read about Paul in Acts chapter 9. और अगर आप देखते हैं कि प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 9 अध्याय में जब पढ़ते हैं, So when Paul sees Jesus in a vision, Jesus is saying, और यीशु मसीह का वो दर्शन करता है, वो दर्शन देखता है। Jesus says, Saul, Saul, why are you persecuting और me? वहां पर देखते हैं कि ये यीशु मसीह से बात कर रखा है, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? Why are you persecuting me? आप किसको सता रहे हैं? मुझे। Whereas the people who are being persecuted were human beings. और देखते हैं कि वह मानव लोग सताए जा रहे हैं
और वो उस बात को वहां पर बता रहा है। But Jesus is saying, you are persecuting me. और यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम मुझे सता रहे हो। Okay, so are you understanding that the believer is part of the body Is- of Jesus? इसका मतलब है कि विश्वासी, सारे विश्वासी मसीह के देह के भागी हैं। So when somebody is harming the believer, अगर whom are they कोई- harming? कोई अगर व्यक्ति किसी का विश्वासी को परेशान कर रहा है, सता रहा है, चोट पहुंचा रहा है, किसको कर रहा है? Christ, right? So मसीह को। Jesus feels the pain और वो मसीह उस दर्द को महसूस करता है because they are part of him. क्योंकि वो उसके भाग हैं। Okay, so the church is the body of Christ. कलीसिया मसीह की देह है The church is eternal. और जो कलीसिया वो सनातन की है। So it's not like God put together an organization and then he will destroy that organization. और मान लीजिए एक संस्था के रूप में लोग उस समूह में इकट्ठा करते हैं, फिर संस्था को तोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं है। So the church is not, a temporary idea. और कलीसिया एक क्या बोलना चाहिए, एक टेम्पररी विचार नहीं है। So God wants to show his kindness through the church even in the ages to come. और परमेश्वर कलीसिया के बारे में इस बात को बताना चाहता है कि वो कलीसिया सनातन या अनंत काल के लिए है। Okay, so we as the body of Christ are eternal. और मैं और आप मसीह की देह में अनंतकालीन के लिए है। And the church is an instrument that will execute the purposes of God. और कलीसिया जो है एक साधन है, मसीह का साधन है कि परमेश्वर के उद्देश्य को अमल में लाने के लिए। I mean, think about this. God could have used angels to preach the gospel. और अब सोचिए, मान लीजिए अगर स्वर्गदूत को परमेश्वर सुसमाचार के लिए नियुक्त करता तो Maybe he would have been able to reach many people faster. और हमसे ज्यादा तेजी से वो स्वर्गदूत सुसमाचार के लिए लोग तक पहुंच सकते थे। But the church is God's instrument. लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, कलीसिया को साधन बनाया। So you and I are that instrument. मैं और आप उसके लिए एक साधन है। So God is going to work through us. और परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य को कराना चाहता है। God will use us. परमेश्वर हमको इस्तेमाल करता है। And so the church has to do many things. और कलीसिया को बहुत सी कार्य को करना है। The church has to walk according to the purposes of God. और परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार कलीसिया को कार्य करना है। So God will implement his plans through the church. और परमेश्वर अपने उद्देश्य को कलीसिया के द्वारा करता है। Okay, so this is God's plan for the church. और ये परमेश्वर का उद्देश्य है कलीसिया के लिए। The church is supposed to represent Christ. और कलीसिया मसीह का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिरूप होना चाहिए। Ephesians 1 verse 23. और एफिसी की पत्री उसका 1 अध्याय 23 पद में बताया गया है। I'm on page 9 in the English book. और हिंदी में 9वें पेज पर। So the scripture says, which is his body, the fullness of him who fills all in all. और ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। So the body is filled with whom? Filled with Christ. और देह किस में परिपूर्ण है? मसीह में परिपूर्ण है। So what will the body reflect? Christ. और शरीर किस बात को प्रदर्शित करता है या दिखाता है? मसीह हमारे द्वारा। So the church is supposed to represent God or Christ on the earth. और मसीह यीशु हमारे द्वारा और परमेश्वर के लिए वो उस बात को प्रदर्शित करता या प्रतिरूप है। So if God is holy, the church should be holy. जब परमेश्वर पवित्र है तो कलीसिया भी पवित्र होना चाहिए। God is righteous, church should be righteous. परमेश्वर धर्मी है, कलीसिया को भी धार्मिकता को पहनना है। Are you all understanding? आप लोग समझ रहे हैं? Because the world will come to know about who God is through the और church. संसार जानना है कलीसिया के द्वारा कि परमेश्वर कौन है। Okay, when God works signs, wonders, miracles in the church, the world will know God is powerful. जब कलीसिया में चमत्कार आश्चर्य कर्म होते हैं, संसार देखना है कि वो कौन है करके। So we have to represent Christ correctly. और हमें परमेश्वर का नेतृत्व सही रूप से हमें करना है। Okay, so the church is a complete representation of Christ. और जो कलीसिया जो है मसीह की परिपूर्णता को दर्शाता है। So now let's talk about a believer.
अब हम विश्वासी के बारे में देखेंगे। Every believer is part of the church. हर एक विश्वासी कलीसिया का अंग है। Okay, so when we say church, it means all the believers on the earth and those who were in Christ and have gone ahead of us in heaven. और कलीसिया का मतलब ये है कि हर एक विश्वासी मसीह की देह है और कलीसिया का अंग है, जो इस संसार में जीवित है और जो उठा लिए गए वो भी कलीसिया के अंग है। So in 1 Corinthians 12 verse 27, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 27 पद में it says, now you are the body of Christ and members individually. इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। So this is like a spiritual membership. और ये आत्मिक सदस्यता है। Okay, so as soon as we accept Christ, what happens? Spiritually you become a member of the church. जब हम मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते तुरंत उसी पश्चात हम मसीह के उस सदस्य आत्मिक सदस्य हम बन जाते हैं। Okay, so maybe the believer is a young believer, is not part of any church, but they are part of the spiritual body of Christ. अगर मान लीजिए कोई एक जवान प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लिया किसी कलीसिया का या भवन में सदस्य नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, वो मसीह की कलीसिया का अंग है। Okay, so the very moment we believe in Christ, we become a part of the church. जैसे हम क्षण में प्रभु को ग्रहण करते हैं, हम कलीसिया के भाग हो जाते हैं। So this is the spiritual dimension of the church. और ये पवित्र आत्मा का एक अंग है, एक रूप को दर्शाता है। This is the spiritual dimension of the church. और ये कलीसिया का एक रूप है, अंग है। So now that we are part of the church spiritually, what is the need to attend church naturally? उदाहरण के लिए अगर हम आत्मिक तौर से हम कलीसिया के भाग हो गए, फिर हमें कोई कलीसिया में जाने की जरूरत है क्या? आत्मिक तौर से हम जुड़ गए, क्या फिर कलीसिया में जाना है हमें? Yes, okay, that's the right answer. ये सही उत्तर है। We'll see why. क्यों? So when now that we are part of the spiritual church, जब हम आत्मिक तौर से कलीसिया के भाग हो जाते हैं, we also have to be part of the local church. और उसके साथ साथ हम स्थानीय कलीसिया के भी भाग हो जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं। See, when Paul writes to Timothy, he makes this statement and he says you should know how to conduct yourself in the house of God. और वहां पर देखते हैं कि तिमुथियुस को पौलुस पत्र लिखकर कहता है कि हम परमेश्वर के घर हैं, जो परमेश्वर की जो जीवित है, परमेश्वर की कलीसिया और उसके भाग है। So even in the early church, they used to gather as a church community. पहली शताब्दी में हम उन कलीसियाओं को देखते हैं, वो एक जगह इकट्ठा होते थे और आज भी हम वही होते हैं। Right? So they gathered as God's people, or in other words, the house of God. और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, दूसरी जो शब्द में कहता है परमेश्वर के घर कहलाए जाते थे वो। So the church is not, mine or yours. Whose house is it? कलीसिया God's मेरा house. और आपका नहीं है, किसका कलीसिया है? God's house. So परमेश्वर का घर आना। we must have reverence towards the church because it is God's house. और हमें इस बात को जानना है और महत्व देना है कि मैं और आप परमेश्वर के घराने के हैं या उसके विश्वास के घराने के हैं। So in the same passage of 1 Timothy 3 verses 14 and 15, Paul also says that this is the church of the living God. और पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 14 और 15 पद में हम देखते वहां बताया गया है कि ये जो कलीसिया है, जीवित परमेश्वर की कलीसिया करके बताया गया है। So we are the house of God. मैं और आप परमेश्वर के घराने के हैं, And we are the church of the living God. और मैं और आप जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। And God wants the local church to represent him here on earth. और मेरे और आपकी जिम्मेदारी कलीसिया होने के नाते हमें परमेश्वर के प्रतिरूप बनना है और उसे दिखाना है। Okay, so when God looks at any place, अगर परमेश्वर किसी स्थान को देखता है, he will look at the church of that place. और वो कलीसिया के रूप में देखता है। So for example, if you consider a state Karnataka, ओके, उदाहरण के लिए कर्नाटक प्रदेश, and there are many cities here. और अलग अलग शहर हैं यहाँ पर। When
you take up Bangalore, और अगर आप बेंगलोर को देखते हैं, God would be concerned about the church of Bangalore. और परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या देखता है? बेंगलोर की कलीसिया। So the church of Bangalore is all the believers put together. और बेंगलोर में क्या करता है? जितने वो परमेश्वर क्या देखता है कि एक साथ सारे विश्वासी एक समूह में इकट्ठा होकर देखना चाहता है। Okay, so he is looking at the church, without any demarcations of denominations and all और that. परमेश्वर इस प्रकार का नहीं देखता कि किसी संस्था का नाम या किसी संस्था के व्यक्ति के रूप में। So there is the body of Christ in Bangalore. और वो किस प्रकार देखता है? मसीह की देह के रूप में देखता है। Okay, and the body of Christ in that city has to represent God to that city. और उस शहर में परमेश्वर की देह को प्रकट करते हुए वो देखना चाहता है। And in that body, obviously, there are different local churches with their own purpose. और उसके शरीर के अलग अलग भाग होने के नाते उसका कलीसिया का परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसको देखना चाहता है। Okay, so there are local churches and God gives every local church its purpose. और हर एक स्थानीय कलीसिया को एक उद्देश्य को दिया, विशेष उद्देश्य को दिया गया है। And God calls people in those local churches with specific callings. और परमेश्वर उन स्थानीय कलीसिया में विशेष बुलाहट और वरदानों को उन जीवन में देखना चाहता है। So the local church is important. इसलिए स्थानीय कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण है। Okay, of course, the local church is made up of the members of the eternal church. और जो हम देखते हैं कलीसिया, जो हर एक विश्वासी जो कलीसिया है वो अनंतकालीनी कलीसिया में पाई जाती है। And every person in the local church is used as an instrument of God. और प्रत्येक विश्वासी जो कलीसिया में है वो एक साधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। Okay, and every person represents Christ. और हर एक व्यक्ति मसीह का प्रतिनिधि बनकर कार्य करता है। And the local church becomes like a family of और God. स्थानीय कलीसिया एक परिवार के रूप में दर्शाता है। Okay, so when believers come together, they experience that oneness as a spiritual family. जब एक साथ कलीसिया इकट्ठा होती है, आपस में एक दूसरे की आत्मिक बढ़ोतरी का अनुभव वो करते हैं। So the local church has significance. और जो स्थानीय कलीसिया में एक स्थान है परमेश्वर का। So we cannot say I am a believer and God is already speaking to me. I know how to read the Bible. I will not go to church. और इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर मुझे चुन लिया, मैं कलीसिया का भाग हूँ, मैं वचन को पढ़ता हूँ, मुझे कलीसिया में जाने की आवश्यकता नहीं। Okay, we have to be part of a local church. हम स्थानीय कलीसिया के भी भाग हैं। Because it is in the local church that we can live out our life as a believer. और हम एक स्थानीय कलीसिया में जीवन जीते हैं मसीह के लिए, मसीह के अंग के भाग होकर। Right? And God has called each one of us with callings. परमेश्वर ने हमको प्रत्येक जन को एक बुलाहट से बुलाया है। God has given us gifts. और उसने हमें वरदानों को दिए हैं। God has given us grace. उसने अनुग्रह से हमें परिपूर्ण किया है। It's not just for us to keep. कि हमें उसे केवल अपने आप में उसको पकड़े रहना नहीं है। It's only when we are part of the local church that we can release the और gifts, जब हम the एक grace. कलीसिया, स्थानीय कलीसिया के भाग होते हैं, उसे हमें रिलीज करना है, उसको हमें कार्य में उपयोग में लाना है। And God has a role for every single one of us in the local church. और परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर इस बात को देखता है कि हमारा प्रत्येक के जीवन का एक भाग है उस काम को करने के लिए। So when everyone fulfills their role in the local church, that's when it will thrive. और जब हम अपनी जिम्मेदारियों को जब ले लेते हैं स्थानीय कलीसिया में, तो हम उस काम को एक बढ़ोतरी में हम देखने पाते So हैं। it's important for us to recognize, that church where God has called us. और इस बात को कलीसिया देखना है कि परमेश्वर ने उसे बुलाया है। Some believers, they don't want to be part of only one church. और कई बार कलीसिया लोग क्या करते हैं, एक ही स्थानीय कलीसिया में बने रहना चाहते हैं कि यही करके। So they don't want to be part of one church. और वो किसी एक चर्च के भाग करके नहीं रहते हैं। They want to attend one church for few months, another church for a few more कई months. बार लोग क्या करते हैं, कुछ दिन इस कलीसिया में जाकर सहभागिता रखते हैं, फिर कुछ दिन के बाद दूसरी कलीसिया में जाकर सहभागिता रखते हैं। But when we are disconnecting like that, it's very difficult to
sort of build relationships. अगर इस प्रकार हम करते रहते हैं तो बड़ा कठिन होता है एक रिश्ता को कायम करने के लिए। Okay, and to identify our role in that place. और हमें इस बात को जानना है कि मेरी जिम्मेदारी उस स्थान में या उस कलीसिया में क्या है। Okay, so it is like, the people of the church are the body of Christ. और जो लोग हैं मसीह के भाग या अंग है। Have you ever seen the hand floating and doing whatever it wants, the और- leg floating doing whatever it wants? क्या आपने इस प्रकार देखा है एक हाथ कुछ दूसरा काम करे और दूसरा हाथ दूसरा कुछ काम करे, ऐसा कभी देखा है क्या? Okay, floating, Pastor. Yeah, floating. तैरना। ओके Yeah. ओके। एक हाथ हाथ को देखते हैं कि अपने आप तैर रहा है, दूसरा हाथ अलग तैर रहा है, ऐसा देखते हैं, देखा आपने? Have you ever seen that? कभी ऐसा देखा आपने? Hand gets disconnected, goes somewhere, does its own thing. Leg और- goes somewhere, और head एक- goes somewhere. हाथ का जहां मना है वहां जा कहीं भी जाने, ऐसा देखा है आपने? You never see a body like that. कभी अपने शरीर को ऐसा देखता है कि पैर कहीं जा रहा है, हाथ कहीं जा रहा है? No, everything is connected. एक साथ जुड़े हुए, एक साथ काम करते हो। We, part of the local church, it's only when we are connected that we can accomplish God's जब purpose. हम स्थानीय कलीसिया के साथ जुड़ते हैं और जब बढ़ते हैं तो हम उन मसीह के उद्देश्य को उस बढ़ते हुए हम देखने पाते So हैं। it's not right to go from, different churches and not commit to the local और church. ये सही तरीका नहीं है कि हम अलग अलग चर्चों में कलीसिया में जाकर जुड़ना या भागी होना। Okay, so we must pray and ask God, which local church do you want me to be a part of? Make a commitment there. और हम इस बात के लिए प्रार्थना करना है, एक जगह स्थिर होना है समर्पित होकर, और हमें उस बात के लिए विषय को रखकर प्रार्थना करना ताकि हम इधर उधर भटक ना सके। Okay, and it is in the context of the local church that we can grow spiritually. और जब हम एक जगह स्थिर होकर कलीसिया में बढ़ते हैं तो हम आत्मिक तौर से बढ़ने पाते हैं, We can develop ourselves. हम अपने आप को बढ़ाते हैं, We can learn to be fruitful for the kingdom of और God. परमेश्वर के राज में कैसा फलदायी होना उसको हम सीखते हैं। Okay, and we can help others, bless others through our life. हमारे जीवन के द्वारा हम किसी दूसरे की सहायता करते हैं, किसी दूसरे को हम मदद करते हैं, We can help them grow in the Lord. और हम मसीह में बढ़ने के लिए उनको मार्गदर्शन करते हैं। And it's, when we are with people, that our character will develop. और जब हम लोगों के साथ होते हैं हमारे चरित्र का भी हम निर्माण करते हैं। When we are all by ourselves, we feel like I'm perfect. और कई बार हम अपने आप में अगर चलते सोचते कि मैं ही अच्छा हूं, बाकी दूसरा कोई नहीं। But when we begin to interact with others, we start finding so many challenges, weaknesses. और जब हम एक दूसरे के प्रति हम प्रभावित होते हैं, कई चुनौतियों को हम अपने जीवन के अंदर सामना करते या देखने पाते हैं। But when we put ourselves in the community of the local church, it may not be easy, but that's the place where our character will get developed. जब हम अपने आप को स्थानीय कलीसिया या सामाजिक संगठन में हम जब जुड़ते हैं तो इस बात को हम देखते हैं कि अपने चरित्र को हम किस प्रकार बढ़ा रहे या अपने आप को समझ पाते हैं उन बातों में। We can learn from each other. हम एक दूसरे के द्वारा सीखने पाते हैं। See, God is doing so much through different people. और परमेश्वर अलग अलग व्यक्ति से बहुत सारी चीजों को करता है, And when we are learning from all of them, we can mature और ourselves. जब हम एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के द्वारा सीखते हैं, हम अपने आप में परिपक्वता को भी देखने पाते So हैं। the spiritual journey, we can't make it alone. और हम आत्मिक हमारी ये यात्रा है, हम अकेले नहीं चल पा सकते हैं। God wants us to journey together as और a local परमेश्वर church. चाहता है हम मिलकर उस यात्रा को पूरी करें। There's a scripture, that says that new wine is found in the cluster. और जिस प्रकार एक हम देखते हैं कि एक नया दाखरस पुराने मस्के में या नए मस्के में हम देख सकते हैं। So you can't just take one grape to get, lots of wine. और हम केवल एक अंगूर से केवल रस को इकट्ठा नहीं कर पा So सकते। usually they'll take a lot of grapes और to उसके make लिए wine. बहुत सारे दाखरस के लिए बहुत सारे गुच्छों की आवश्यकता होती So है। in the same way, God is looking for unity. God is looking for oneness among the body of इसी Christ. प्रकार परमेश्वर अपने शरीर में एकता को और एक होकर एक मन के लोगों को परमेश्वर चाहता है। When people of God learn to work together, churches learn to work together, we can do so much for the kingdom of God. जब व्यक्तिगत तौर से
और जो सीखना चाहते हैं एक साथ मिलकर सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उस काम को करता है। So God commands a blessing when brothers dwell together in unity. और जब भाई लोग आपस में मिले रहते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष को, उस समुदाय को आशीषित करता है। And we can experience all this only in the context of community. और ये सब जब आशीष हम का अनुभव कहाँ कर पाते हैं? समुदाय में, समूह के बीच में। So God has designed the local church for us to live out our Christian life. और परमेश्वर ने कलीसिया के रूपरेखा को तैयार किया है ताकि हम विश्वासी लोग आपस में रहकर आगे बढ़ सके। So the church is very important. और इसलिए कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण है। And belonging to a church, committing to a local church is very important. और हम कलीसिया से जुड़े रहना और कलीसिया के समर्पण रहना ये बहुत महत्वपूर्ण है। Okay, so are there any questions or doubts regarding this matter? Why should I belong to a church? और अगर आपके पास कोई प्रश्न है कि मैं कलीसिया के क्यों भागी हूँ, ऐसा कोई बात है आपके मन में, पूछ सकते हैं। Why should I be a part of a church? मैं कलीसिया का क्यों भागी हूँ, मैं कलीसिया का भाग क्यों हूँ, ऐसा कोई प्रश्न है? No? Okay, fine. Let's move on. So we'll go to chapter 2. अब हम दूसरे अध्याय में जाएंगे। And chapter 2 is about the purpose of the local church. यहाँ पर दूसरे अध्याय में स्थानीय कलीसिया के उद्देश्य को हम देखेंगे। We all know that before Jesus ascended, he gave the Great Commission. और जब यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के पहले उसने एक महान आदेश को चेलों को दिया। So the purpose of the church, why are we still here? Because we have a mission. कलीसिया यहाँ पर क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है यहाँ पर रहने का, कि हम देखते हैं परमेश्वर का विशेष उद्देश्य उसके अंदर। Okay, and that mission is to preach the gospel to the whole world. उस पूरे संसार, उसका कार्य क्षेत्र में, पूरे संसार में उसका सुसमाचार को फैलाने के लिए। He's asked us to make disciples of all nations. और वो सारे संसार में शिष्य को बनाना चाहता है। Okay, so just because we are saved, it's not that, nothing else is there for us to do. हमने केवल उद्धार पा लिया और वहीं तक सीमित रहना, वहां तक नहीं है हमारा काम। God has a mission. परमेश्वर का एक कार्य क्षेत्र है। Okay, so so much of work needs to be done. इसलिए बहुत से कार्य करना बाकी है। So God wants us to preach the gospel, disciple people. और परमेश्वर का जो उद्देश्य है कि सुसमाचार लोग तक पहुंचा जाए और चेलों का निर्माण कर सके। So the mission of the church, you could say, is world evangelization. और जो कार्य क्षेत्र है कि सारे जगह में सुसमाचार को फैलाया जाए उस परमेश्वर की रणनीति के अनुसार। Okay, so can you just look at your neighbor and say there is so much work to do? और आप अपने पड़ोसी को देखकर कहें कि हमें बहुत कुछ करना है। Okay, so this, सोते हुए ना कहें बहुत कुछ करना है। yeah, so there is a sense of urgency. और ये बहुत ही अति आवश्यक है। Okay, so we can't, as the church, we cannot have that attitude like, yeah, Jesus has done everything, it's over, what should I do? हमारा तरीका यह नहीं होना चाहिए कि यीशु ने किया तो मैं क्या करूं, मैं करना है कि नहीं, right? But there must be a sense of urgency in our heart. और हमारे हृदय में वो बोझ होना है उस काम को, ये जरूरी है करके। Because as the church, Jesus has given us a mission. और ये हम कलीसिया होने के नाते मसीह ने वो हमें उद्देश्य को या अपने कार्य को दिया है। We have a lot of work to do. इसलिए हमें बहुत से काम करना बाकी है। Okay, according to the Great Commission, we have to reach out to the whole world. और महान आदेश के अनुसार हमें पूरे संसार में फैलना है या फैलाना है उसका संदेश। This is the responsibility of the church. और ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। And this is the responsibility of every local church. और ये हर एक स्थानीय कलीसिया की जिम्मेदारी होती है। Okay, so what is the mission of the church? कलीसिया का कार्य क्षेत्र कौन सा है? Preach the gospel. Very good. संदेश को देना। Okay, so there are so many things that we have to discuss. और हमें बहुत सी बातों पर हमें चर्चा करना है। But let's go for a break. I think it's time for a break, right? अभी इस समय ब्रेक का समय है, उसके बाद फिर हम चर्चा करें। 3 o'clock. One hour. 2 more minutes. Okay, 2 more minutes. Yeah, that's fine. We can still take a break and then कोई we'll बात नहीं, come ब्रेक back. ले सकते हैं। Yeah, thank you.
Thank you all online students.